हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन। और आज मैं आपके साथ जून 2008 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो यहाँ पर आपको आंसर के साथ भी एक्सप्लेन के साथ आपको मिलेगा। ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार आपका क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके आपको जो PYQ होते हैं उससे भी पूछे जाते हैं, राइट। सो नाउ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is here. Tennyson's poem about women's rights and women's sphere is: first option is Maud, second option is In Memoriam, and third option is Idylls of the King, and fourth option is The Princess. तो जो टेनिसन्स का जो पोएम है, इनमें से कौन सा ऐसा पोएम है जो कि वीमेंस राइट और वीमेंस स्फेयर की बात करता है? किन कौन सी पोएम में बात करता है टेनिसन? तो टेनिसन की जो द प्रिंसेस पोएम है, इट इज़ अ serio comic blank verse narrative poem and which was published in 1847, right? So Tennyson was poet laureate of United Kingdom from 1850 to 1892, and he remained one of the most popular English poets. So in his poem The Princess, he talks about women's right and women's sphere. So your correct answer is here D, The Princess. Next question is Hymn to Adversity is a poem by. Hymn to Adversity किसने लिखा है poem? First option is Thomas Gray, second option is Edward Gibbon, third option is Alexander Pope, fourth option is William Blake. So you know that Hymn to Adversity, this is an allegorical ode, and it was published in 1753 and was written by the poet and literary scholar Thomas Gray. And he is widely known for his elegy written in a country churchyard, which was published in 1751. So, right, Hymn to Adversity is a poem written by Thomas Gray, right? So, your correct answer would be here 2 का A, Thomas Gray. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड. क्वेश्चन में आपका बियर दे दिया गया था, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट होगा बाइबल. द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आ चुका है UGC नेट एग्जामिनेशन में. So your first option is 1609, second option is 1610, third option is 1611, and fourth option is 1612. So King James Bible was published in 1611. So you must know that the King James Version, also known as the Authorized Version, that is called abbreviation AV, or King James Bible KJB, is an English translation of Christian Bible for the Church of English, and that began in 1604 and completed in 1611. So the books of King James Version include 39 books of Old Testament and 27 books of New Testament, right? So ये आपका memory base आपका question है. So in the King James Bible was published in 1611. आपको ध्यान में रखना है. Next question is here. Al milligro favro is the expression Eliot used for. Eliot किसके लिए ये use किया है ये expression? First option is here Henry James. Second option is here Samuel Beckett. Third option is W.H. Auden, and fourth option is Ezra Pound. Right. So you must know that T.S. Eliot used the above expression for Ezra Pound for his role as an editor of The Wasteland, and it was published in 1992. So here you must know Al milligro favro is the expression Eliot used for Ezra Pound. And why did he use? So Eliot used this expression for Ezra Pound for his role as an editor of which book? The Wasteland. So you must know that this answer. So आपका 4 का ये D आंसर हो गया. Next question is here. The figure a poem makes is an essay by. किसने लिखा ये essay? First
कभी कभी आपका इस तरह का टाइटल पूछ देते हैं जिसके टाइटल देखने से आपको लगता है ये पोएम ही होगा, लेकिन कई बार वो पोएम नहीं होता, ऐसे होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है कि आपके पास यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन एसे बाय, first option is Henry James, second option is Sylvia Plath, third option is Robert Frost, fourth option is Wallace Stevens, right? So you must know that Robert Frost was an American poet. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. So your correct answer would be here, Robert Frost. So the figure a poem makes is an essay by Robert Frost. So your correct answer would be C. आपका 5 का C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, रिपनेस इज ऑल अकर्स इन। ये जो क्वेश्चन है, रिपनेस इज ऑल, ये जो डायलॉग है यह किस में है शेक्सपियर के वर्क में? फर्स्ट ऑप्शन इज किंग लेयर, सेकेंड ऑप्शन इज हेयर हैमलेट, third option is Macbeth, and fourth option is Julius Caesar. So you must know that this dialogue ripeness is all occurs in King Lear, that is written by Shakespeare. And in which scene of this, you know that King Lear is a tragedy, and in this tragedy, Act 5, Scene 2, Shakespeare has used this dialogue, ripeness is all, right? सो हु सेड, आपको कई बार डायलॉग जो होता है या स्पीच होता है उसके बारे में, जो स्पीकर होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है कि वहाँ पे वो स्पीकर कौन है जो डायलॉग बोलता है। तो ये जो आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि रिपनेस इज ऑल, यह डायलॉग जो है यह कौन बोलता है? यह एडगार सेड दिस लाइन टू ग्लूसेस्टर, दिस लाइन रिपनेस इज ऑल, या एडगार सेड दिस लाइन, दिस डायलॉग टू ग्लूसेस्टर। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर किंग लेयर। किंग लेयर का ये आपका डायलॉग है, किंग लेयर में ट्रेजेडी में है ये। सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर 6 का ए हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have next question here, AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in, again आपका ये मेमोरी बेस पे है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज here 1903, second option is 1904, third option is 1905, and fourth option is here 1906. So AC Bradley, you know, AC Bradley was an English literary scholar and who is best known for his work on Shakespeare. And also you must know that his two major works are Shakespearean tragedy that was published in 1904, and next is Oxford Lectures on Poetry that was published in 1909. So AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in 1904. So your correct answer would be here B. आपका 7 का B आंसर हो जाएगा 1904. Next question here we have question number 8. Topsy appears in. टॉप्सी जो है वह कौन से वर्क में अपियर होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज अंकल टॉम्स केविन, सेकेंड ऑप्शन इज हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड ऑप्शन इज वेल्डन, and fourth option is Tom Sawyer, right? So you must know that Uncle Tom's Cabin, or we can say its subtitle is Life Among the Lovely. आपको कई बार सब टाइटल भी पूछा जाता है। तो it is an anti-slavery novel by American author Harriet Beecher Stowe and published in 1852. This novel helped lay the groundwork for the Civil War, according to Will Kaufman. So here your correct answer would be आपका 8 का आपका ए हो जाएगा अंकल टॉम्स केबिन, जो कि पब्लिश कब हुई थी? अब मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 1852 में। और यह अंकल टॉम्स केबिन जो कि वर्क है, एक नॉवेल है, इसमें यह अमेरिकन ऑथर ने लिखा हुआ है हैरिट बीचर स्टो में, जिसमें क्या है टॉप्सी अपीयर होता है उसमें, राइट? सो आपका 8 का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, अ पोएम दैट captures the essence of a moment in a simple image is.
क्या कहा जाता है? अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ए मोमेंट इन अ सिंपल इमेज. फर्स्ट ऑप्शन इज लिरिक, सेकेंड ऑप्शन इज बैलेड, थर्ड ऑप्शन is ode, and fourth option is haiku. So you must know that uh, the answer of this question is haiku. So what is haiku? Haiku is a traditional form of जापानीज पोएट्री. ये जो हैकू है ये ट्रेडिशनल फॉर्म है जापानीज पोएट्री का. एंड हैकू पोएम्स कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स. ये 3 लाइन का पोएम होता है. द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स हैव 5 syllables एंड मिडिल लाइन हैड 7. सो द लाइन्स रेयरली राइम. सो 9 का आपका डी हो जाएगा हैकू. और मैंने आपको बता भी दिया है कि हैकू होता क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरिंग प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. आपको जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है 1-2 हर साल आपको पूछते हैं. इसलिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है उसका पब्लिकेशन डेट आप ज़रूर याद रखें. So your first option is The Merchant of Venice. Second option is Henry IV Part 1. Third is Romeo and Juliet. Then 4 Richard II. Second option में है आपका first Richard II, Henry IV Part 1, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice. Third option में है आपका Henry IV Part 1, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Richard II. ऑप्शन डी में है आपका रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड II, हेनरी IV Part 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो यू मस्ट नो. तो आपका करेक्ट सीक्वेंस जो होगा यहाँ आपका सी होगा. अब सी होगा कैसे? क्योंकि आपका यहाँ हेनरी IV Part 1, फिर रोमियो जूलियट, फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर रिचर्ड II हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, द वर्ड नेचर इन द 18th century लिटरेचर स्टैंड्स फॉर. ये जो है नेचर जो वर्ड है 18th century में किस के लिए स्टैंड करता है? सो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर नेचर ऑफ राइटिंग. नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल नेचर. थर्ड इज ह्यूमन नेचर. सो अब फोर्थ इज द यूनिवर्स. तो आपका जो है 11 का जो है नेचर जो वर्ड है वो किसके लिए? देयर इज नो सच एविडेंस बट ड्यूरिंग 18. ऐसा कोई इसमें एविडेंस नहीं है. आपका ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, बिकॉज रोमांटिसिज्म यूज टू राइट ओवर ह्यूमन बीइंग्स, हेंस इट कैन बी सेड दैट ह्यूमन नेचर इज द बेस्ट आंसर अमॉन्ग ऑल. क्योंकि इसका आंसर उस टाइम UGC नेट में आपका इसमें कुछ भी आंसर आपका जो दिया गया था आपका नेचर ऑफ राइटिंग एंड ह्यूमन नेचर दोनों में से आपका सही दे दिया था. तो आपका यहाँ पर यूजुअली आपका नेचर ऑफ राइटिंग ज़्यादा आपका सही होगा. सो आपका 11 का ए हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर जो है वैसा तो इन्होंने ह्यूमन नेचर की भी बात की है और नेचर ऑफ राइटिंग में भी इन्होंने क्या क्या क्लासिकल लिटरेचर को इन्होंने फॉलो किया है. तो आपका बेस्ट आंसर नेचर ऑफ राइटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक. जो है इसमें कौन सा राइटर है जिसने फर्स्ट टाइम रोमांटिक वर्ड का यूज़ किया, टर्म का यूज़ किया है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेडरिक स्लेगल, सेकेंड ऑप्शन इज कैंट, थर्ड ऑप्शन इज कोलरिज एंड फोर्थ ऑप्शन इज सीलर. सो यू मस्ट नो दैट ये जो टर्म है रोमांटिक फ्रेडरिक सीगल ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. सो आपका 12 का ए आंसर हो जाएगा. फ्रेडरिक सीगल कौन था? फ्रेडरिक सीगल was a German poet, literary critic and philosopher. So he was a zealous promoter to romantic movement. So this is all about 12 का आपका ए आंसर हो जाएगा. Next question we have here, Gudrun is a character in a novel by. यह किस में है? यह कैरेक्टर गुदरून कैरेक्टर किस नॉवेल में है? किस नॉवेल के राइटर में, किस राइटर के नॉवेल में है? मतलब आपका राइटर का नाम दिया गया है, आपको ये बताना है आंसर. फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स जोया के नॉवेल में है या वर्जीनिया वुल्फ में. थर्ड D.H. लॉरेंस के नॉवेल में है या E.M. फोस्टर के नॉवेल में है. तो आपको ध्यान रखना है जो गुदरून कैरेक्टर है या इट इज़ अ नॉवेल वीमेन इन लव, एक नॉवेल है जो कि D.H. लॉरेंस की नॉवेल है. और ये जो नॉवेल थी वीमेन इन लव पब्लिश हुई थी 1920 में, राइट.
सो ये डी एच लॉरेंस की है एंड इट इज इक्वल टू हिज अर्लियर नॉवेल द रेनबो। सो आपका करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा, डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस का एक नॉवेल है वीमेन इन लव, जिसमें ये गुडरून कैरेक्टर अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव जूलियस पीपल इज अ नॉवेल बाय। ये नॉवेल किसने लिखा है? जूलियस पीपल। फर्स्ट ऑप्शन इज मार्गरेट एटवुड, सेकेंड ऑप्शन इज वी एस नैपॉल, थर्ड ऑप्शन इज वोल्सविंका एंड फोर्थ ऑप्शन इज नडाइन गॉन्टिवर, राइट। सो जूलियस पीपल जो है नॉवेल या नडाइन गॉर्डिमर ने लिखा था, तो आपका 14 का डी आंसर होगा। अब नडाइन गॉर्डिमर एक्चुअली है कौन? जूलियस पीपल जो है वह एक नॉवेल है दैट इज रिटन बाय साउथ अफ्रीकन राइटर एंड नडाइन गॉर्डिमर, एंड गॉर्डिमर रोट the book before the end of the apartheid in the prediction of how it would end. So this book was notably banned in South Africa after its publication. 15 number question, heroic couplet is a pair of। heroic का काफ़ी इजी क्वेश्चन है या एक दो क्वेश्चन इजी भी आपके रहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। heroic couplet is a pair of, first option is rhyming iambic pentameter lines, second option is rhyming iambic pentameter lines, third option is rhyming iambic hexameter, fourth option is unrhyming iambic hexameter। सो आपको पता होना चाहिए कि हीरोइक कॉपलेट जो है वह राइमिंग आइएम्बिक पेंटामीटर लाइन्स है। अब हीरोइक कॉपलेट होता है क्या? हीरोइक कॉपलेट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोएट्री एंड कॉमनली यूज्ड इन एपिक एंड नैरेटिव पोएट्री एंड कंसिस्ट ऑफ ए राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन आइएम्बिक पेंटामीटर, ये होता है, राइट। सो आपका 15 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, जेस्टाल्ट थियरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज। First option is a structure of metaphor, second option is a unified whole, third option is an experimentation in form, fourth option is construction of his theory, construction of history. So Gestalt's theory of literature considers text as a आपका यूनिफाइड होल हो जाएगा, राइट। अब ये होता है क्या? एक्चुअली गेस्टाल्ट थियरी एम्फेसाइज्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंग इम्पोज्ड ऑन सेंसरी डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। सो एंड ऑफन quoted summary of gestalt theory whole or pattern is the phrase the whole is more than the sum of the part। ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है the whole is more than the sum of parts, ओके। सो आपका 16 का आपका बी आंसर हो जाएगा। थैंक यू।